Okay, so I think you had ample of time to think over. आपने क्या क्या जाना कि कैसे चल रही है जिंदगी? You're improving or you're in the same stage as before? तो वो आपको कैसे ख्याल आ रहा है उसके बारे में? कुछ चैट में लिख दीजिए you're feeling fine. अगर बोले okay I'm fine, I'm good, ऐसे करके good, fine, not good, तो उस पर पता चल जाएगा how is your mood. हाँ, थोड़ा एक्टिव हुई है प्लीज. मैं जानता हूँ स्पेन में तो 2:30 बजे हैं, शायद सोने का टाइम है, खाना पीना खा के थोड़ा आराम करेंगे स्पेन में, और इंडिया में तो ठीक टाइम चल रहा है, 6 बजे है. ओके, सो आई कैन सी quite a number of new people who have joined this time. So welcome to the newcomers and जो पहले आते हैं also very welcome. So this exercise workshop which you have to do daily is actually आपको हर रोज करने चाहिए रात को. You should think आपके साथ के उस जिंदगी में जो हुआ आज के दिन, you are happy or you're not happy. आपका जो बैलेंस शीट है, are you happy with that balance sheet? Most important is to be sincere to your own self. खुद के साथ sincere होगे तो then the things function. Okay. So anyway, so what actually मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर हो सके, if you feel it is okay, कि what we can do is I can make a small groups of 3 people only because right now the participants are few. और आप आपस में you discuss among yourself is something very intimate. खुद में होने चाहिए कि अगर आपके जिंदगी में धर्म नहीं होता, रिलीजन नहीं होता, या धर्म है रिलीजन है, तो कौन सा फायदा आ रहा है आपके जिंदगी में, और नहीं है तो कौन सा नुकसान आ रहा है आपके जिंदगी में. If you're feeling comfortable, those who don't want to join can remain back, doesn't matter. मैं इसलिए 3 बना रहा हूँ कि अगर कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता तो ठीक है, बट इफ यू वांट टू शेयर कि जस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म, द रिलीजन इन योर लाइफ. छोटी छोटी बातें हैं, किसको मंदिर जाना अच्छा लगता है, किसको भजन गाना अच्छा लगता है, कोई जप करता है, कोई भोग चढ़ाता है, आनंद आता है उसको, तो वो उसके अगर जिंदगी में नहीं होता, if that was not there in his life, how would his life would be? or if he is having it in his life, जो हो रहा है उनके जिंदगी में, तो कैसे कितने खुश हैं उसमें, तो दूसरे से एक दूसरे से एक्सचेंज करें. Is it okay? Can you write okay on the screen to see whether it is okay with you, and we can go ahead. There are some comments on the board. Rajkumar saying that in some actions he has done something better, and in some not much improvement. So Rajkumar, I'm very happy. I'm glad that you are being very sincere. And Ananda Varna भी कह रहे हैं, माधव भी कह रहे हैं कि they are improving in their lifestyle. कुछ बदलाव आ रहा है, तो is a progress. It's good. As long as this auto study is there, it's going to be very good. Okay. Haribol Prabhu, sorry, just one, just want to comment. Is somebody watching the WhatsApp messages on Vedic Wisdom? WhatsApp messages? Because there's somebody who cannot join, they've said. They needed help. I doubt, because everyone is joining with the same. Or maybe that person's joined, and that was Lalita, I think, who said she cannot join. I don't know. There's one person, yeah, but at 36, 2 minutes back. I don't know, because I don't know whether she is there already, and maybe. He said, please put capital K for, I don't know what, I cannot go to my WhatsApp. I don't know what she was saying. So maybe. Please put capital K for Krishna password. Oh, yeah. Somebody's already answered. All right, okay. Yeah. Somebody. Okay, sorry. Okay, yeah. Okay, so let's make this group, and आप समझ गए ना what I'm trying to refer to. So just a second, give me just a minute, and we have 14 of us, so 3, 4, 12. So we'll make 4 rooms.
ठीक है, जैसे आपके रूम्स बन जाएं तो you just have to pinch the entrance up and then you'll be in that room. So room number 1 you are having Lavina, Meetna, Pehal and Yogita. Breakdown 2 is Anand, is Ashok Changlani, Dipti Aswani, Hema Gauri and Ram and Sangeeta. Third group is Prema Manjari, Rajkumar Punjabi and Raju. And the fourth is Ananda and Madhavi, Kanika and Mahesh Daulatram Puktani. Okay, so I'm going to make you enter in the rooms and you please discuss. Be very casual. It's आपस में फैमिली में बैठे हो, कोई ऐसा परीक्षा नहीं चल रही है या कोई ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसे कोर्ट केस भी नहीं चल रहा है, कोई ऐसा अदालत का कोई केस भी नहीं है. आप फ्रीली एक दूसरे से जानिए और धर्म के बारे में, रिलीजन, हाउ इम्पोर्टेंट रिलीजन इज इन योर लाइफ. ओके, थैंक यू. Okay, that leaves Lavina and Mahesh Daulatram Bhuktani who have not joined. So let's see. Anyway, Lavina, are you unable to enter into the room or you need some help? Yeah. Okay, Hare Krishna, welcome back everybody. Hope you had a good time with your new friends, maybe for some people new friends, some people your old friends, your relatives. Okay, so nice. So you want to share your experience? Any one of you wants to say how your experience was in this gathering? Yes, Prabhuji, it was wonderful. Nice, you enjoyed it? Yes, yes, very much. Okay, very good. I'm happy. Anybody else? Anybody else wants to share some comments or something? How did it go? Did they get some new ideas, new concepts? Did they learn? Hare Krishna. Yeah. Yeah. So we were a very small group. We were only three of us. I, Madhavi, and Kanika. And she mentioned very good points because we wrote down some points which I would like to share. Okay. Yeah. So she said that before she couldn't even understand the concept what dharma was. You know, she had a very vague and ambiguous idea what dharma was. But after coming into ISKCON, she understood what is the meaning of dharma. And she also understood the meaning of a devotee association. You know, how we, before she would find it difficult to mix with the people, you know, because of difference of background and opinions. But after coming into devotee association, she found very meaningful friendship, meaningful friends. And then I mentioned also that before life would not have any meaning. It was just like a meaningless life, you know, wherever we would just walk, wherever we would, wherever the road would take us. But now this has given some meaning to our life, and life has become more blissful, more happy, more peaceful. And she also said that she did not know which scriptures she could refer because there are thousands of scriptures. But after following this ISKCON path, she has known that, you know, which scriptures are more important than others. So it was a good discussion. So many things, wonderful things. Huh? आपको भी ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कनिका को हो रहा था? जिंदगी में सबको तो ऐसा
देखा गया है ना कि एक बार ऐसे इस मार्ग में आ जाते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करने का मौका मिलता है, यू गेट एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन मिलती है, प्रेम प्रेम बढ़ता है, जानते हैं भगवान कौन होता है, हम कौन होते हैं, थोड़ी जानकारी बढ़ती है ना. इज इट ओके? नो? सो इट्स वंडरफुल. सो दिस इज व्हाट, ये जो हम कहना चाहते हैं कि ये जरूरी है कि आप एक दूसरे से बात करें, अपना मन खोल के बात करें, तो यू विल लर्न समथिंग न्यू. इस कहानी का बता रहे हैं भाई जी, आनंद प्रभु बोल रहे हैं, जो शी इज अ यंग गर्ल, जस्ट रिसेंटली, आई मीन अबाउट अ ईयर बैक शी हैज कम टू स्पेन एंड शी इज वर्किंग इन सम इंटरनेशनल कंपनी and she's a very good devotee. So welcome to Kanika, and we're happy that you are with us in this session. Okay, और कोई share करना चाहता है या we can go ahead now with the program? Okay, so we will proceed ahead because now there are many things to be discussed. So I'll share the screen again. Sorry. Okay, so last time we were discussing, तो ये तो बात आप हमेशा अपने आप में जांचिए, जो आपके जो गुड एक्शंस हो रहे हैं, जो गलत, वो हर एवरी डे आप एक बैलेंस शीट बनाइए. And sometime when you want to, you are you feel free to talk, you can talk among the devotees, आपस में फैमिली में है, and you'll feel comfortable. तो हम लोग ने last time बताए थे कि we are talking on 3 fundamental types of knowledges which are given by Bhagavad Gita: the confidential knowledge, the more confidential knowledge, and the most. तो हम अभी confidential knowledge पे ही बात कर रहे हैं, who are we? Okay, तो who are we, the confidential knowledge का टॉपिक लेके, उसमें 3 किस प्रकार के स्टेजेस हैं. वो स्टेजेस है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग आवर आइडेंटिटी एज सोल्स, कि पहले कि हम आत्मा है. तो ये तो हमने जान ली बात, जैसे हमने अगले बार ऐसे वर्ड्स भगवद गीता चैप्टर 2 और 13 वर्ड्स में से पढ़े थे कि वी आर द सोल्स. ओके, सो दैट्स कंफर्म. ये पॉइंट तो हो गई. अभी अगर हम सोल्स हैं तो हमारे बिहेवियर कैसे होने चाहिए. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट बिहेवियर. एंड द लास्ट एस्पेक्ट इज, ये बिहेवियर करेंगे और अगर हम जानते हैं कि आत्मा है और हम इस प्रकार की जिंदगी जिएंगे जो हम आज बात करने वाले हैं, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? We will reach to the stage of liberation, which is Brahma Bhuta. Okay, so that is the first understanding of confidential knowledge. यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे फिर बाद में, तो ये आत्मा के लिए और या जो इंसानों के लिए है ना, इतना करना तो मिनिमम है. अगर इतना करते हैं तो हम इस जिंदगी में ही जो जी रहे हैं, हम जो जिंदगी, वी विल ऑलरेडी फील आवरसेल्फ लिबरेटेड. आपको कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हेवन, स्वर्ग वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल फाइंड योरसेल्फ लिबरेटेड इन दिस वेरी लाइफ. ओके, सो okay, now coming back to this topic of regarding the we are the soul, this everybody is confirmed. Is there any doubt still that we are not this body, that we are the soul? So if you can write in the chat box, okay. Okay means I will understand that you are confirmed that you are the soul. Everybody agrees to it. Actually, I should be getting, there are right now 16 participants. I should be getting at least 16 answers, at least, if not 18. So 16 people should respond that they are okay. If anyone doesn't respond, means that there's still some doubt. कुछ मन में अभी तक शंका रह गई है कि हम आत्मा नहीं है, फिर अभी तक जानकारी है. क्योंकि अगर इतनी समझ नहीं आएगी कि हम आत्मा नहीं हैं, तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि शरीर का जो फर्ज होता है, जो ड्यूटीज होती हैं, और जो आत्मा की होती है, वो अलग अलग होती है. तो मैंने, हाँ, so we are getting okay, quite a number of okay. So Meena Jethani, Kanika, Yogita, Anandavardhana, Ramesh Achwani, Prema Manjari, Lavina, Hema Gauri, and Pahal. Oh, good. So quite a possible है दूसरों ने जो नहीं लिखा हो, possible है उनको difficulty हो रही हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि हाँ, जान लिए कि हम souls हैं. ठीक है, तो अभी now we can proceed ahead. अभी नेक्स्ट स्टेप था, एक बार हम जान लिए कि हम सोल्स हैं, तो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? हम बताएं द बिहेवियर, अ कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर. अभी हमारे बिहेवियर कौन से होने चाहिए? हम जान गए अभी आत्मा, अब तक तो हम जी रहे थे, जो भी जिंदगी जी रहे थे इंसानों की, जैसे शरीर के लेवल पे जी रहे थे, खाना है, पीना है, घूमना है, ऐश करना है, मजे करने हैं. शरीर को बहुत आनंद आ रहा था, मन को आनंद आ रहा था, इंद्रियों को बहुत आनंद आ रहा था. यहाँ तक हमने कर लिया.
अभी जान ले, थोड़ा बहुत जान ले, ये तो ठीक है, करना है, वो भी ऐसे नहीं है कि कल से ही छोड़ दो सब, ऐसे जंगलों में चले जाओ और जंगल में वास करके ऐसे योगियों के जैसे बैठ जाओ ना, वो भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि कुछ कुछ जिंदगी में बदलाव आ जाना चाहिए, क्योंकि एक ये जानकारी हमें पा ली है कि हम आत्मा है। तो अभी सोचो कि एक आपके घर में पिंजरा है, उसमें तोता बैठा हुआ है, आज तक आपने खाली पिंजरे का ख्याल किया, पिंजरे को साफ करते रहे, उसको धोते रहे, उसको सोने के जैसे बना दिया, चमका दिया, इतना चमका दिया कि सोना लग रहा है, और बेचारा वो अंदर जो तोता है वो भूखे भूखे मर मर के पतला सा होते, दुबला सा होते जा रहा है। तो आपको ये अभी अभी एहसास हुआ कि आपके लिए महत्व ज्यादा एक तोता है, उसका पिंजरा नहीं। तो अभी तोते के लिए, तोते पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो ध्यान देना यानी हमारे आत्मा के लिए थोड़ा ध्यान देना है। तो ठीक है, तो अभी ये हमने तो पढ़े थे कि हम आत्मा है, ये तो हम देख लिए थे। So we'll just go rapidly ahead and we come to this point. Once we understand perfectly that abhi we are the spirit souls and not the material body, then what role does the material body have in our lives? अभी ये जान लिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो फिर शरीर से क्या करना? शरीर तो है ना, अभी तो शरीर तो मिल चुका है हमें, तो ऐसे थोड़ी शरीर को अलग यानी भूल जाएंगे उसके बारे में। उसका रोल भी क्या है, वो हम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यानी हमको दिया क्यों गया है ये शरीर, उसका रोल ही क्या है? अगर हम आत्मा है तो हमें शरीर दिया क्यों गया? व्हाई द बॉडी हैज बीन गिवन टू अस? ओके, दैट्स द क्वेश्चन। इफ वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, तो हमको दिया ही क्यों? अगर हम है ही नहीं तो हमको दिया ही क्यों? जो मुझे खिलौना पसंद नहीं है वो खिलौना हमको दिया ही क्यों? अभी खिलौना दे दिया, मुझे पसंद आने लगा, अभी बोलते अब खिलौने पे ध्यान मत दो। तो ये जरूरी है कि उसका रोल जाने। खिलौना है, हमें हाथ में मिला हुआ है, अभी हम उसे खेलते हैं, लेकिन अभी उसका एक्चुअल रोल क्या है? हाँ, जैसे कि आपको कोई छुरी दे देवे, नाइफ दे देवे, तो छुरी के तो बहुत उपयोग हो सकते हैं ना, सब्जी भी काटने के लिए हो सकते हैं, तो किसका खून भी करने के लिए हो सकता है, नहीं? रिवॉल्वर है, ऐसे कोई भी चीज है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अनेक उसके उपयोग होते हैं, तो अलग अलग। तो इसका मेन रोल तो भी होने चाहिए ना, तो शरीर का मेन रोल क्या है, तो हम ये पहले जानेंगे। ठीक है, we'll first go ahead and see। यहाँ फॉर द ह्यूमंस यानी इंसानों के लिए the body is very important। एक सेकंड, just let me, okay, the is very important instrument, it's like a vehicle to serve the Lord। ये इंसानों के लिए, ठीक है। ऐसे जानवरों और पेड़ पत्तियों को भी शरीर हैं, लेकिन उनके शरीर से वो भगवान को नहीं जान पाएंगे, वो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। पर हमारे इंसानों के लिए ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी हम इंसान ही चला सकते हैं ना, जानवर नहीं चला सकता। लेकिन अभी गाड़ी घर पे है तो किस कारण है, उसका उपयोग क्या है? गाड़ी है तो फिर आपको उसका उपयोग तो करना है ना, तो उसका उपयोग एक सही उपयोग भी होता है कि आप उसको अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए, काम पे चढ़ने के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो उसका असली काम है। गलत काम नहीं करवाना है ना गाड़ियों से भी। तो ये जो बॉडी इज वेरी एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, क्योंकि अगर आत्मा अगर इधर रहती है तो उसको कोई शरीर चाहिए, बिना शरीर आत्मा इस धरती पे नहीं रह सकती। और अलग अलग भी, वो अगर अलग शरीर है और आत्मा अलग अलग है तो वो हम पसंद भी नहीं करेंगे। सोचो कि आपके घर में कोई आत्मा है, उसका शरीर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? इसको भूत है? एक गोस्ट है हमारे घर में, तो गोस्ट से आप पसंद नहीं करोगे ना रहने। वही कोई आपके घर वाला ही होता है, कोई शरीर छोड़ के चले जाए और आत्मा उसकी आपके घर में भटकते रहे, तो वो सोचो कि जिससे आपको पहले प्रेम था, अभी उसकी आत्मा उस आपके घर पे है, तो आपको थोड़ी तकलीफ होती है, आपको पसंद नहीं आता। और अगर शरीर को आत्मा छोड़ जाती है तो वो शरीर को भी आप पसंद नहीं करते, बोलते चलो जल्दी इसको ले जाओ शमशान में, उसको जला देते हैं। वही शरीर से पहले प्रेम था क्योंकि उसके अंदर आत्मा थी, और अभी वो शरीर से नफरत होने लग रही है। और वही आत्मा जो पहले शरीर के अंदर थी, अगर भूत के तरफ आ जाती है तो फिर हमें वो भी पसंद नहीं है। तो यानी शरीर, आत्मा के रहने के लिए शरीर बहुत जरूरी है। तो यू वी नीड कोई ना कोई प्रकार का शरीर चाहिए, या तो ह्यूमन फॉर्म चाहिए विच इज वेरी गुड, या तो फिर कोई लोअर स्पीसीज चाहिए। तो ह्यूमन फॉर्म के जो शरीर हैं उसका उपयोग सिर्फ शास्त्रों में बताया गया है कि उसका उपयोग एक ही है, वो हमें भगवान के निकट ले जाए। उस शरीर से ही हम मंदिरों में जा सकते हैं, तीर्थ स्थानों में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, हाँ,
जप कर सकते हैं। जानवरों को भी तो शरीर है, लेकिन ये सब काम नहीं कर सकते, लेकिन ये इंसानों काम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ बॉडी। तो ये शरीर हमको कैसे मिलता है? हमारे अभी लास्ट टाइम बताया गया थे, बात किए थे कि ये शरीर जो हमें मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। सही बात है, कर्म के हिसाब, जो कर्म करते हैं हमें इंसान का शरीर मिल गया। अच्छा, वो कर्म कैसे किए जाते हैं? एक डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरी क्रिएशन जो चल रही है ना, ऑन वन एलिमेंट ओनली, डिजायर। जो इंसान को मन में डिजायर होती है, वो चाहत जिसको बोलते हैं, चाहत होती है, भगवान उस चाहत को पूरत करने के लिए ऐसी सिचुएशन, ऐसी माहौल बना देता है, ऐसी बातें कर लेता है कि ताकि आप वो करें और आप वो पा लेंगे। आपको समझो पैसे चाहिए, डिजायर करते हो, चाहत आपको पैसे की है, तो भगवान आपके लिए भी ऐसी बंदोबस्त कर लेंगे, ऐसी तैयारी कर लेंगे, ऐसे व्यापार आपके सामने ले आएंगे, जो आप व्यापार करोगे आपको पैसे आएंगे। किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए? तो हमको शरीर चाहिए था, हम इंसान बनना चाहते थे, तो हम इस संसार में आ गए, वरना हम तो बैठे थे ना भगवान के यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, तो भगवान के साथ ही बैठे थे पहले। हमने कुछ ऐसी मांग की, ऐसी चाहत की, इसलिए हम यहाँ के थोड़े आ गए हैं, थोड़े कैदो फंस गए हैं, कहने का इस तरह से मतलब है। तो शरीर जो हमें मिलता है हमारे पिछले चाहतों से, चाहत करते हैं उस हिसाब से कर्म होता है, और उस हिसाब से कर्म होने से हमें वो शरीर मिल जाता है। तो जिस प्रकार का हम चाहत रखेंगे, कर्म करेंगे, वही शरीर मिलेगा। अभी ऐसे हम इंसानों की जिंदगी जिएंगे तो अगले जन्म में फिर इंसान मिलेगा। अगर हम देवी देवताओं की जिंदगी जिएंगे, भक्तों की जिंदगी जिएंगे, तो देवी देवता जैसे बन जाएंगे, भक्तों की जिएंगे तो भक्त लोक में चले जाएंगे। भक्त लोग कहाँ है? वो शरीर, वो वृंदावन में ही है, जहाँ पे भक्ति होती है। भक्ति कहाँ? भगवान की होती है। तो जहाँ भगवान के वास, उधर हम चले जाएंगे, क्योंकि भक्त तो भक्ति करेगा ना, उसको और कोई जानकारी ही नहीं है। वो घर में भी, इधर भी बैठा भक्ति करता है, तो उनके लिए ये भी वृंदावन बन जाता है। तो इस प्रकार से हम देखा जाएगा तो 15th चैप्टर में बताया गया है कि ये हम एक प्रकार के छोटे ईश्वर हैं। ईश्वर यानी कंट्रोलर। हम ईश्वर हैं क्योंकि हम अपनी फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कौन सा शरीर चाहिए। तो जिस प्रकार का आप जिंदगी जियोगे इस वक्त में, तो अगले जन्म में आपको उस प्रकार का शरीर मिलेगा। तो आपने अपना शरीर खुद ही चुना है। जो हम आज मिलता है हमने खुद चुना है, और उस शरीर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम छोटे से ईश्वर हो जाते हैं। और दूसरी एग्जाम्पल दी गई है कि जैसे वायु होती है, तो वायु में कोई सुगंध आ जाती है, तो वो सुगंध एक जगह से दूसरी जगह तक वायु के द्वारा पहुंचती है। तो इस प्रकार से हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, वो हमारी आत्मा के साथ ट्रेवल करता है। तो जैसे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त होगा ना, वो आत्मा के साथ जाएगा। जैसे हवा में सुगंध जाती है, तो तो जो हमारा आत्मा के साथ है वो हमारा चित्त जाएगा। तो जैसा हमारा चित्त होगा, तो अगले जन्म में हमें वही चित्त का, उस शरीर की प्राप्ति होगी। हमारा चित्त जानवरों का होगा तो शरीर का, जानवर का शरीर प्राप्त हो जाता है। और अगर हमारा चित्त देवी देवताओं या भक्तों के सामान्य होगा, तो हमें उस प्रकार का शरीर मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक ऐसे मिलते जा रहा है। तो ये रहा कि why this body is important। हाँ, तो इसलिए इस शरीर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अभी गाड़ी होती है, गाड़ी खरीदे आपने, तो नेचुरली आपको काम दे रही है गाड़ी, तो उसका मेंटेनेंस भी करोगे ना। अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो गाड़ी समय से पहले ही खराब हो जाएगी। हाँ, तो शरीर भी है एक प्रकार का व्हीकल है। हाँ, यंत्र रुदानी माया। हाँ, उसके पिछले वर्ड्स में हमने लिखा था, वहां पे लिखा हुआ यंत्र रुदानी माया, भगवद गीता 1861। यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हीकल। जिस यंत्र में, इस मशीन में हम बैठे हुए हैं, और हम उसमें सोच रहे हैं कि हम इस यंत्र को हम चला रहे हैं। हाँ, यंत्र हम नहीं चला रहे हैं। हाँ, वो हमारे जो नियम है, जो रूल्स के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं वो रूल्स हमारे लिए बन चुके हैं, और उस यंत्र उस नियमों के हिसाब से चल रहे हैं। तो इस शरीर है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे खाना पीना खाना चाहिए, आराम करना चाहिए, उनको सब देना चाहिए, लेकिन ओवर पैम्पर भी नहीं करना चाहिए। वो ओवर पैम्पर में क्या होता है, देखो अभी आगे चल के देखेंगे कि जैसे कि एक इंसान है, अभी देखो गाड़ी खरीदी हुई है,
वो गाड़ी के साथ इतना प्रेम आ गया उनको, इतना प्रेम आ गया, इतनी मोहब्बत है कि गाड़ी के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं है। इज टू अटैच्ड। वी शुड नॉट बी, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी, बट ऑल्सो वी शुड नॉट बी टू अटैच्ड टू अवर बॉडी। ऐसे नहीं उसको ही चमकाते रहेंगे, उसको चमकाते रहेंगे। जैसे कि हमने मिसाल के तौर पे बताया था एक तोता और उसका जो पिंजरा है, तो तोता का ख्याल करते नहीं है, मैकेनिज्म यानी मेंटेनेंस का ख्याल करते नहीं है। जाएंगे ही नहीं अगर मैकेनिक के पास कभी मेंटेन करने, तो गाड़ी तो कभी ना कभी खराब हो जाएगी। तो ये जो बाहर की जो खूबसूरती है ना, वो खूबसूरती इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इट इज देयर। जो आपको कर्म के हिसाब से जो हमको मिलता है, वो हमारे कर्म के हिसाब से खूबसूरती भी मिलती है, वो भी कर्म के हिसाब से आती है। ठीक है, हर इंसान एक अपने हिसाब से खूबसूरत है। उसमें कोई ना कोई ऐसी खूबसूरती, ऐसी खासियत होगी जिसकी वजह से वो सुंदर होता है। हाँ, हम खाली जो आउटवर्ड अपीयरेंस होती है, जो दिखावा होता है हमारे शरीर का, उस पे जाते हैं, वो गलत है। क्योंकि वो जो दिखता है वो है नहीं, जो है, जो अंदर है वो है। अब इंसान इतने अच्छे अच्छे होते हैं। अब जैसे अभी कोई सामने से कोई ऐसा इंसान जैसे कोई बीमार हो, ऐसा वो आ ही आता है, तो हम सोचते हैं नहीं, इससे दूर ही रहना अच्छा है। हाँ, ठीक है, आपको ये ख्याल आया, लेकिन आपने अंदर जाके उनके टटोला कि किस प्रकार का इंसान है। शायद वो इंसान इतना ज्ञानी हो, इतना जानू हो कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ये इस प्रकार से एक छोटा सा कहानी है, जैसे हमारे स्टोरी बताते हैं, जस्ट टू गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। एक प्रिंस था, राजा का बेटा था, तो उसको कोई एक मंदिर में गया एक बार, तो कोई एक भक्तिन थी कोई, तो उनसे प्यार हो जाता है, उनके शरीर से प्यार हो जाता है कि बहुत सुंदर थी। हाँ, ऐसे फिर हमारे भक्त भी कभी कभी ऐसे कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, जैसे लगते हैं कि कोई गोलोक से आए हुए हैं ना, तो इतनी सुंदर थी, उससे प्रेम हो जाता है। उनको कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो पूछती है, मुझसे शादी जरूर करना चाहते हो आप? पक्के हो? आपको आप श्योर तो हो ना कि करोगे मुझसे शादी? प्यार है हमसे? बोला हाँ है ना। बोला ठीक है, तो ऐसे करो, 1 महीने के बाद आओ, फिर हम शादी करने का ख्याल, फिर हम बातें करते हैं। तो वो बोले ठीक है, मैं 1 महीने हर दिन वो खड़ा होते यानी वेटिंग करता था, सोचता था कभी 1 महीना निकल जाएगा। उस बीच में उस लड़की ने क्या किया, वो खाना पीना बंद कर लिया पूरा, और जो भी खाती थी उसको उल्टी करवा देती थी, वॉमिटिंग करवा देती थी, और जो भी जो निकलता था शरीर से ना, जो भी मल निकलता है शरीर से, पेशाब मल जो भी होता है, वो एक मटकी में संभालते गई। एक बड़ा मटका ले लिया, उसमें उसमें उतारते गई सब। तो जो भी गंदगी निकलती थी शरीर में से, जैसे वॉमिटिंग थी, जो मल था, जो भी था, वो जाके उसमें डालते गई, और अपने आप को इतना दुबला कर दिया, इतना पतला सा कर दिया, जैसे एक हड्डी का पिंजरा लग रही थी। तो 30 दिन के बाद जब वो आया, तो उससे पूछती है, वो पूछता है वो लड़की कहाँ है? वो पहचान ही नहीं पा रहा था उस लड़की को। बोले जो एक डिवोटी है, इसका वही नाम है। बोले वो मैं ही हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं वो हो ही नहीं सकते हो, मैंने तो उनको देखा था, वो अलग सी थी, खूबसूरत सी थी। बोले नहीं वही हूँ, लेकिन अभी क्या, मैंने अपने खूबसूरती को आपसे अलग कर दिया है, मैं बताती हूँ मेरी खूबसूरती कहाँ है। और वो उसको मटकी के वहां ले जाती है, उसको गंदगी दिखाती है। बोला तो ये जो शरीर में गंदगी थी ना, वही मेरी खूबसूरती थी। तो आप देखो वो खूबसूरती बनती कैसे है। हम जो खाते हैं पीते हैं जो भी है, तो खूबसूरती बनती है हमें मेंटेन, लेकिन वो हम है नहीं। हम जो हम है, जो वो जैसे हमने बताया आत्मा है, और हमारा अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारा रियल सेल्फ है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने ये जान लिया कि वाई बॉडी इज इम्पोर्टेंट, और बॉडी का रोल क्या है। हाँ, अभी हम आते हैं ये सीधा एक जो 18 चैप्टर मैंने आपको कल भेजा भी हुआ था, एक फॉर्मेट, एक फॉर्म भेजा था क्वेश्चनर का, जिसपे मैंने कहा था कि आप 18th चैप्टर 51 एंड 253 और 54 वर्सेस पढ़ें। अभी ये 51 to 53 बताते हैं कि इंसान एक बार प्यूरिफाइड हो जाता है ज्ञान के बल पे, ज्ञान के बल पे प्यूरिफाइड हो जाता है। यानी ज्ञान कौन सा? कि मैं आत्मा हूँ। तो उस आत्मा से वो प्यूरिफाइड हो जाता है, वो ज्ञान से प्यूरिफाइड हो जाता है। हाँ? कि वो स्वच्छ हो जाता है कि मैं अभी अभी कि वो आत्मा का सवाल है ना। तो अभी आत्मा एक बार वो जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, तो वो क्या करने लगता है। तो हम पहले पहले हम क्या करते हैं, अभी तो कोई भी अपना माइक खोल के, जो आप स्क्रीन देख रहे हो, तो कोई एक जन आपस में वो खोल के आप रीड कीजिए, जो फर्स्ट ए वाला है। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हाँ, मैं पढ़ूं?
हाँ पढ़िए ना. Always remains in the mode of goodness, very easily controls his mind and gives up the objects of sense gratification. राइट. तो ये क्या कह रहे हैं, यानी आपके समझ में क्या आ रहा है, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Always in the mode of रमेश जी आप अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए. रमेश एक मिनट. ये भाभी कहाँ पे बात कर रही है सर? हाँ तो ऑलवेज रिमेन इन द मोड ऑफ गुडनेस. हाँ तो वो because हाँ after getting purified by the intelligence, हो रहा ये कि उसका इफेक्ट ये आता है कि the person remains in the mode of goodness. एग्जैक्टली. आपको अट्रैक्शन आएगी नहीं, दूसरा ऐसे गलत काम करने की अट्रैक्शन होएगी नहीं. राइट. आप ऐसे ही चाहोगे कि सबके लिए भला हो, सबके लिए अच्छा हो, तो गुडनेस में ही आ जाओगे. राइट. तो एक बार गुडनेस में आ जाते हैं तो आप मन को बस में ले आना आसान हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे मोड में चल रहे हो ना कि आपका शक्ति बढ़ जाती है, मन को बस में ले आना आसान हो जाता है. और एक बार मन आसान बस में आ गया तो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो ऑब्जेक्ट्स इंद्रियां के तृप्ति के लिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें दिलचस्पी भी कम लगने लगती है, क्योंकि जानते हैं वो सिर्फ हमारे इंद्रियों को ही खुश कर रहा है, हमारे मन को खुश कर रहा है, आत्मा की खुशी के लिए नहीं है. हाँ? सही है. ठीक है. अभी नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी. कैन एनीबॉडी रीड द पॉइंट बी? Hare Krishna. हरे कृष्णा जी. Free from attachment and hatred, prefers to live in a secular place, eat as much as required, and control his body, mind, and power of speech. वेरी गुड. तो वो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं इसके बारे में. So when the soul is purified, he becomes free from the attachment of family and the other things of material, and he has no hatred for anyone. So he is friend of enemy. Some mitra cha shatru, so it's like that. Yes. So and then he don't like the place where there is a like society and all. He lives there, but he still is a yogi. He likes to sit at a lonely place, and he eats very less. He don't like to eat the other stuffs which is necessary for the body. He eats only that thing, and he controls his mind and like that. So he becomes yogi. Very this way. Yeah. Very good. Yes. Okay, Rogita, very nice. Very good understanding. So we have to understand that once you are in the mode of goodness and you have become purified in mode of goodness, your attachment, you'll understand that attachment जो होती है ना, वो शरीर से मतलब रखती है, यानी शरीर से कंसर्न रखती है. इज कंसर्निंग विद योर बॉडी ओनली. हाँ, एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली कि हम शरीर नहीं है, भले हमारे बच्चे होते हैं, अपनी पत्नी होती है, ठीक है, हमारे शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो देन यू कनेक्ट एवरीवन टू बी देयर related to the super soul, related to God. In that sense, actually, we are all properties of God. Nobody is ours. मेरा हम बोल देते हैं हमारे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा घर या मेरी पत्नी. हम एक वर्ड अटैच कर लेते हैं, मेरी वो मेरा ना, तो वो कॉन्सेप्ट ही चले जाता है. वो कॉन्सेप्ट यानी फिर हो जाता है कि ये सब भगवान के हैं तो मेरा है ही नहीं, तो अटैचमेंट क्यों रखना. हाँ, अंडरस्टैंडिंग. तो हमें इस जानकारी से कि वी आर द सोल, तो ये एक दूसरी बात प्राप्त हो जाती है कि हम अटैचमेंट हमारी कम हो जाती है. और अटैचमेंट कम होने से हेट्रेड तो चले ही जाएगा, नफरत होएगी नहीं, किसी से भी नफरत नहीं होगी. किसके पास अगर ज्यादा है, किसके पास कम है, तो वो नफरत की बात आएगी नहीं, क्योंकि वो बोलेगा जो भी है वो हमारा है ही नहीं. जो उनके पास ज्यादा भी है तो उनका भी तो नहीं है. अगर उनका नहीं है तो फिर मुझे नफरत किस बात की रखना. और ऐसे करते करते चाहे कि मैं ऐसे रहने लगूं कि ताकि मैं किससे ज्यादा घूमूं फिरूं नहीं, अपने खुद में जीना चाहता है, कम खाना चाहता है, इस तरह से अपने शरीर पे अंकुश ले आता है, अपने आत्मा में, अपने मन में अंकुश ले आता है. तो we will now proceed to the next C, the point C. Let's see who would like to read the point C.
रमेश प्रभु आपने Can I? yeah, tell me who is it? I'm Shamu. Can I read it? Read please, come on. Very nice. One whose intelligence is purified by the knowledge of the soul is always in trance. He is detached from bodily concepts. He becomes free from false ego, false strength, false pride, lust, anger, and acceptance of material things. He becomes free from false proprietorship. Very good. So can you give some comments of yours? What do you think about this concept? Yeah, because he knows that he is not body, he is soul. So he is free. The thing is his. So there is no ego involved. There's no false pride involved. There's no anger. There's no lust because nothing is his. He is free, in fact. Very good. Yes. हाँ, that's right. So इस तरह से एक ईगो जैसे यहाँ बताया गया फॉल्स ईगो एक्चुअली ऐसे नहीं कि ईगो हमें नहीं है, सब में ईगो होता है, लेकिन एक जेन्युइन ईगो होता है, प्योर ईगो. द प्योर ईगो मीन्स योर आइडेंटिटी. हमारी आइडेंटिटी होती है, उसको ईगो बोलते हैं. तो हमारी रियल आइडेंटिटी इज दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड. तो मोमेंट अगर हम सोचने लगे कि हम भगवान के हम नौकर क्यों बने, हम खुद के मालिक हैं, तो वो फॉल्स बन जाता है, क्योंकि खुद का मालिक बन ही नहीं सकते हो. अगर खुद के मालिक हो तो अपने आप को संभाल क्यों नहीं सकते हो? जब भी बीमार पड़ जाते हो या मरने पे आते हो या कुछ आपके तकलीफ आ जाती है, तो अगर खुद के मालिक हो तो खुद को अपने बचा क्यों नहीं सकते हो? तो यानी एक फॉल्स आइडेंटिटी आ जाती है. तो ये फॉल्स ईगो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बिकॉज ऑफ आवर कनेक्शन विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस. वो इग्नोरेंस अगर हमारे एक बार हट जाती है, देन वी विल रियलाइज that we are pure souls. हमारी ईगो प्योर हो जाती है. The point is that we have to reach to the point. ये तो एक हमारा जो लास्ट गोल है, जो टफेस्ट गोल है ना, वो ईगो को यानी जो हमारा जो अहंकार है उसको हटाना है. वो एक बार अहंकार हट जाता है तो हमारा ईगो becomes a pure ego. It's not big परिश्रम होगा, ये आसान नहीं है. हमें काफी कुछ करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल भी है. थोड़ा हमें अपने यानी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. वो एफर्ट्स डालेंगे तो देखो, 2 कदम हम लेते हैं तो 10 कदम भगवान ले लेते हैं. भगवान बोलते हैं कि आप 2 कदम हमारी तरफ आओ तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा. वो भी हमें मदद करने के लिए तो बैठे हैं ना, वो भी तो तैयार हैं, ऐसे नहीं. लेकिन वो हम चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी चाहत के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये रहा पॉइंट सी. एंड पॉइंट डी, और किससे मैं फरमाइश करूंगा कि कहे पढ़े ये. या And thus remains always peaceful. Such a person is certainly elevated to the position of self-realization. वेरी गुड प्रभु जी, आपके लिए ये पॉइंट आपसे मिलती है थोड़ी बहुत. यू रिमेन ऑलवेज पीसफुल. आप पीसफुल ही हो हमेशा. वेरी गुड प्रभु जी. और अच्छा, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि पीसफुल यानी अगर ये क्या यानी का मतलब थोड़ा हमें भी समझाइए. हाँ देखो ना, अभी इतने सब डिटैचमेंट हो गए हैं. अगर सब आपके पास पता है आपको गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं. देखो, डर और जो जो डिस्टर्बेंस और एंजाइटी किसको होती है? जिसको गंवाने का, कोई प्राप्त करने का लालच या गंवाने का डर होता है. तो किसको अगर प्राप्त करने की लालच ही नहीं है और गंवाने का डर ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं खुद के पास, सब तो वो जान लेता है कि मेरा है ही नहीं. भले हो आपके पास, ऐसे नहीं कि आपके पास नहीं है, लेकिन आप जान लिए कि मेरा है ही नहीं और उसको एक दिन छोड़ के ही जाना है, तो मेरा है ही नहीं. आई एम नॉट द प्रोप्राइटर. जहाँ पे पता है वी कम फ्री फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप. तो आपके ये लास्ट कॉन्सेप्ट है. एक बार फ्री ऑफ प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा ना, तो बाकी के पहले वाली बातें सब खुद छूट जाएंगी. क्योंकि एक बार आप जानकारी पा लिए कि ये मेरा है ही नहीं, जो भी है, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे बिजनेस, मेरे पैसे, वो सब है ही नहीं, आखिर में मुझे छोड़ के जाना ही है, तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम पीसफुल. तो डर ही नहीं होगा मन में. वो जो डर ही है वो हमें एंजाइटी, हमें तकलीफें देता है. एक बार डर चले जाता है तो फिर इंसान पीसफुल हो जाता है. और डर जब जाएगा जब हमें सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं रहेगा हमें. और इस प्रकार का जो इंसान है विल बी एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. तो वो सेल्फ रियलाइजेशन वाला पोजीशन कौन सा है? नाउ इट इज डिस्कस इन द नेक्स्ट वर्ड्स.
अभी ये देखो, ये जो तस्वीर में जो है नारद मुनि, आप सब जानते होंगे कि कैसे हैं। इनको कोई टेंशन है, इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है या एंजाइटी है, जहां जाते हैं भगवान का नाम जपते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस प्रकार से ही इज वेरी पीसफुल। तो ये वर्ड्स है जो 254, वो बोलते हैं, a transcendently situated person at once realizes the supreme Brahman and becomes fully joyful. वो जान लेता है द ब्रह्मन स्टेज, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत स्टेज। ये एक स्टेज है जहां पे इंसान ही इज ऑलवेज हैप्पी। हाँ, एक बार कोई किसी इंसान ने पूछा भक्त से, वो भक्त बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जैसे संकीर्तन पे जाते हैं ना, रास्तों पे जाके किताबें देते हैं लोगों को, तो वो मुस्कुरा मुस्कुरा के पुस्तकें दे रहा था। तो उस इंसान ने पूछा, अरे बता तो सही एक बात, तू तेरे पास कुछ ऐसे शादी विधि की हुई है? बोले नहीं नहीं, मैं शादी करता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो बोले ठीक है, फिर आपका कोई व्यापार, वैसे पैसे कहाँ से आते हैं आपके यहाँ? बोले मेरे पास पैसे है ही नहीं। बोले बैंक अकाउंट जब है ही नहीं, गाड़ी कुछ है? बोले गाड़ी भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं मंदिर में रहता हूँ, जो मुझे मंदिर में खिलाते हैं मैं खाता हूँ। तो बोलते फिर इतने खुश कैसे लग रहे हो? आपके जो चेहरे पे ऐसी मुस्कान लगी पड़ी है, ऐसी हंसी लगी पड़ी है, और आपके जो रौनक भी, आपके शरीर, आपके शक्ल में इतनी ऐसी रौनक, यू ब्राइट, यू एफल्जेंट लगे पड़े हो इतने, हाउ इज इट? तो बस कि जो क्लू एक ही है, जो आंसर एक ही है, नो एंजाइटी। Today Krishna has given me, I will enjoy what he has given me. Tomorrow he doesn't want to give me, I don't care. It is Krishna's responsibility, it's not my responsibility. I am his child, he has to take care of me. बच्चे को कभी कोई तकलीफ होती क्या, जो सुबह मुझे दूध नहीं मिलेगा, या कोई ऐसे खेलने के लिए खिलौने नहीं मिलेंगे, या जो भी है ऐसे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलेगा, वो पिताजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इस प्रकार से डिवोटी की एटीट्यूड इस तरह से हो जाती है कि ही रीच टू द स्टेज वेयर ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट कि मेरा रखवाला राखे कृष्णा, मारे कोई। बोले मुझे अगर कृष्णा ही रखने वाला है तो मुझे मरने का भी क्या डर है? अगर मार भी देगा तो मुझे उसी के पास ले जाएगा, खुद के पास ले आएगा, तो मुझे किस प्रकार का डर है? तो वो स्टेज उसको बोलते हैं ब्रह्मभूता। हाँ, तो ये ब्रह्मभूता स्टेज में ये 3 पॉइंट्स मेन लिखी हुई है, जो ग्रीन कलर में दिखता है आपके सामने। ही नेवर लेमेंट्स के, प्रेम मंजरी आप ही ऐसे देख रहे हो, मैं स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो आप ही पढ़ लीजिए। यू ओनली रीड द 3 पॉइंट्स व्हिच आर देयर इन ग्रीन। He never laments nor desires to have anything. He is equally disposed towards every living entity. In that state, he attempts pure devotional service. Very good. ठीक है, तो अभी now what we will do, we will come back to these points A, B, C, D. Okay, so again we will make groups अभी। So you just have to discuss, each group will have to discuss point A. Suppose first group will discuss point A will be what are the benefits of remaining in the mode of goodness and controlling your mind. अगर नहीं करते हैं तो हमें कितना प्रॉब्लम आ सकता है, नुकसान कितना आ सकता है? क्योंकि पता है जो रजोगुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। जो सत्वे गुण में हम बैठे हैं तो उसके अपने फायदे होते हैं। अगर गुण अब कम करवा देते हैं, जो तमे गुण में आ जाते हैं और रजोगुण में आ जाते हैं, तो उसके प्रॉब्लम्स अलग प्रकार के आते हैं। हाँ, तो आप आपस में डिस्कस कीजिए। तो आप तो मैं अभी वो ग्रुप बनाता हूं। तो एक ये ग्रुप में है, एक गुडनेस की बात करेंगे, दूसरी अटैचमेंट एंड हेट्रेड की बात करेंगे, तीसरा वाला जो है कि फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। यानी ये कॉन्सेप्ट्स का मैं बता रहा हूँ, खाली है तो इसमें 19 कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपको लेना है, सिर्फ सब कॉन्सेप्ट नहीं लेने हैं। जो फर्स्ट ग्रुप होगा वो गुडनेस के बारे में बताएगा, बात करेगा। जो सेकंड होगा अटैचमेंट एंड हेट्रेड, थर्ड होगा फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, एंड फोर्थ होगा दैट रिमेनिंग ऑलवेज पीसफुल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू रिमेन पीसफुल। ठीक है, तो आई विल जस्ट स्टॉप दिस शेयरिंग and I will make these groups. So do you all want to remain in the same group, or you want to change the group? Is it okay you remain in the same group as before? Yeah, that's fine. Okay. Whatever you decide, 5, actually. 9, 9 and 3, 12. नहीं, पहले add a room. No, I think we'll have to recreate because there are more people now.
Okay. 17 and 5, 5, 3, 15. Yeah. Yeah, so we'll make 5 rooms. Okay, please all try to participate, okay? So group 1 will be headed by Ananda, and he has to talk on mode of goodness. Group 2, there will be Yogita and Ramesh, and Ram and Ashok. So they will talk about, what was the second point? About, sorry. Attachment, yeah, right. And so, attachment and hatred, right? Hatred and attachment. C, the third group, which is will be by Hima Gauri, Raju and Mahesh Daulatram Poptani. So this third group will talk about, I can't remember. False ego. False ego, yes, false strength, false ego, and sense of proprietorship. And the fourth group will talk about the concept of peace, the importance of peace in our life, peacefulness, okay? And the Is fifth the fourth group Lavina's group? Yeah, no, the fourth group is Kanika, Shilpa, and Sindhu Lalwani. Okay. And there's a fifth group, which is of Chadda, Meena Jethani, and Prema Manjari. So they can again talk about the first point, maybe again, because there are only 4 topics there. So they can talk about the point again of Goodness. goodness. Mode of goodness. Goodness, okay? Fine, all with you? Okay, I'm opening the room, okay? Okay, come now. Start with the group A. Who was anyone can start from group A and give the first point. I think the point was on mode of goodness, right? Yes. Ananda's group. Yeah. So can any of you start sharing so that we can start writing the points? Yeah, we shared quite good points. Everybody put their opinion. Shamu and I don't remember this name. We were there, and there was another couple. Yeah, Rakesh. So we shared very good points. So first we discussed how to attain the mode of goodness, how to strengthen the mode of goodness is with the help of getting the knowledge from the Shastras and from the spiritual master, and by listening to the Paramatma. That is how we strengthen our mode of goodness, how we reach the mode of goodness. Then what are the benefits of... Yes, I'm just writing down because we need to share them later on with all okay. of so as to strengthen the mode of goodness is... From Shastras. From Shastras. Yes. From spiritual masters. From spiritual masters, yes. And Paramatma. Okay. What is the second point? The second point is when we are in mode of goodness, we are appreciative. Yes. Towards God. Yeah. For all what He has given to us. Yes. Okay, and then the third point was after we are in mode of Is there anyone else they can also share so that I mean from your group? He has written down our points. No, we have shared. we have written down. This was like said by Shamu. First one was said, so we have written all the points. Okay, continue then. And then what was the benefits is of being mode of goodness as that we can control our minds. Control our mind. We can give up sense gratification. Give up sense gratification. Follow the 4 regulative principles. Follow the 4 regulative principles. Yes. And perform bhakti. And perform bhakti. Yeah. So this is like a. Okay. Very good. Yes. Very good. So many nice points, so many beautiful points, which sometimes we don't even we may never even occur to us. And sometimes you don't even find in some books. So these are the natural self-realization points, we can say.
I would like to add one more thing. Yeah, Like I said, that I feel goodness is next to godliness. very good. Goodness is next to godliness. Very good. You're very near to God. When you begin a mode of goodness, there's only one stage which is separating us from goodness and God, is Vishuddha Sattva. Okay, Vishuddha means purity, complete pureness. Okay, goodness has some tinge of some concepts of material aspects, some tinge is there. So that's why it is next to godliness, but it has to come to godliness. We have to try to come to the point where goodness is godliness. Okay, Shamu? Yes, So I this agree. goodness is Yes. next to godliness, but now we have to come to the point where goodness becomes godliness. Okay, so we come to this Yes. point of Vishuddha Sattva, which is purity, complete pureness in our chitta, in our consciousness. हमारे चित्त एकदम जब pure हो जाएंगे, then we will become one with God. Okay, Yes. so okay, very good. These wonderful points. I hope everyone is like enjoying those points, appreciating these points. Now we will go to the group B. Okay, group B. Who can start saying some points from group B? Who was in charge of group B? I think Ramesh uncle is going to. हमारा था ना, हमारा ही है. Yes. So you Ashok in ji. the English or Hindi? You say anyway. We will just write it in English. We'll translate it. I have written some of the points in English. Okay. So Tell let that Raju uncle finish. Let him. Okay. बताइए. Carry on, carry on. अशोक जी. हाँ, राजू बताइए. हाँ, देखिए, हमारे को जो विषय दिया गया था वो ये दिया गया था कि वैराग्य और मोह का विषय दिया गया था. राइट. हाँ. रमेश जी का कहना था कि वैराग्य वो चीज होती है जिसमें हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए. हाँ. सब कुछ त्याग का नाम वैराग है. हाँ. पर थोड़ा मेरा ओपिनियन अलग था. मैंने उसको बोला कि भाई सब कुछ छोड़ देना वैराग नहीं है. आप सब ड्यूटी करते रहिए, घर की ड्यूटी भी करिए, बच्चों की ड्यूटी भी करिए और संसार और समाज की ड्यूटी भी करिए. हाँ. पर ड्यूटी के बदले कुछ न चाहना ही वैराग होता है. हाँ. सब कुछ छोड़ देना वैराग नहीं है. राइट. अगर छोड़ने वाली बात होती तो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को क्यों बोलते कि तुम युद्ध करो? तो छोड़ देना था. राइट. तो मेरे हिसाब से वैराग छोड़ने का नाम नहीं होता है. सब कुछ करते हुए उसकी फल की इच्छा का त्याग करना ही वैराग होता है. वेरी गुड. ये रमेश, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? रमेश, ये इतना मेरे को राजू भाई ने प्रकाशित कर दिया ना कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है. जो मैंने अनुभव किया है वो मैंने आपको बताया. कि मेरी दिल की भावना सुनिए. मेरा जो ज्ञान था वैराग्य के बारे में वो किताबों से लिया गया था, लेकिन कभी अनुभव किया नहीं था, क्योंकि वैराग्य के तरफ में कभी मुड़ा नहीं था. लेकिन मेरे भाई ने इतना स्पष्ट कर दिया. ये मैंने अपना अनुभव बताया आपको. हाँ, ठीक है. और कर्म फल की इच्छा नहीं रखना, आशा नहीं रखना वैराग्य है. राइट. ये मैंने अपने जीवन का अनुभव आपको बताया है. और मैं सच्ची बताऊं आपको, मेरे जीवन में बहुत हल्कापन है. इसका कारण यही है कि मैं किसी फल की इच्छा नहीं करता और मैं तो वैराग्य जीवन ही जी रहा हूँ. ओके, वंडरफुल. अब आप इसको अपने हिसाब से जैसा एक्सप्लेन पॉइंट बनाने हो बना लीजिए. हाँ, मैं समझाता हूँ. देखो, मैं आपको एक पॉइंट शेयर करता हूँ. जी. ये अभी जो आप दोनों ने बात की, अभी मैं दिखा रहा हूँ जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं. हाँ. भगवद गीता में 18 अध्याय में अर्जुन से पूछते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई विश टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रिनाउंसिएशन, यानी त्याग, एंड द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास. ओके, तो ये आप दो कॉन्सेप्ट जो बता रहे थे ना, एक है त्याग और दूसरा है संन्यास. या संन्यास यानी सब छोड़ देना, जो हमारे यानी आपको रमेश बता रहे थे, सब छोड़ दो. और दूसरा है त्याग, यानी कर्म के फल छोड़ दो. कर्म करो लेकिन फल पे इतनी इच्छा मत रखो. आया फल तो ठीक है, उसका उपयोग करो, वो भगवान की सेवा में करो. ऐसे नहीं कि आपको फल को जो आपके आ ही रहा है फल आपके काम की वजह से, उसका मतलब ही नहीं आप रास्ते पे छोड़ आओ, उसको फेंक के आओ कचरे की तरह से.
आप उसका उपयोग करो और भगवान की सेवा में लगाओ, तो वो फल यानी आपको भक्ति दिलाएगा। तो ये आगे चल के भगवान क्या जवाब देते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, गिविंग अप ऑफ एक्टिविटीज दैट आर बेस्ड ऑन मटेरियल डिजायर इज व्हाट ग्रेट लर्नड मेन कॉल रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। यानी सब एक्टिविटीज जो मटेरियल डिजायर पे रहती हैं, यानी जो काम के आधार पे होती हैं, जो भी कार्य जो काम के आधार पे होता है उसको छोड़ना, वो बड़े ऋषियों ने कहा है कि वो संन्यास होता है। और जो कर्म का फल का त्याग कर लेता है वो त्यागी कहा जाता है। हाँ? तो ये इसने एक्सप्लेनेशन दी त्याग और संन्यास में क्या अंतर है। तो भगवान बोलते हैं कि ये बात निष्ठ पक्की है कि हमें क्या करना चाहिए। बोलते हैं मैं सुना रहा हूं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, यानी इन त्याग और संन्यास के बारे में। तो क्या बोलते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यम एव तत्, यानी सेक्रीफाइस चैरिटी पेनेंस आर नॉट टू बी गिवन अप। ये नहीं कभी छोड़ना चाहिए, भले आप सन्यासी भी हो जाएं या त्यागी भी बन जाएं, तो आपको यज्ञ करने हैं, दान करना है, तप करना है, ये तीनों ये बात तो आपको करनी ही है, यज्ञ दान तप कर्म। हाँ? तो ये जब भी काम करेंगे तो हम त्यागी बन जाएंगे, क्योंकि देखो यज्ञ क्या होता है, दूसरों को दान देना, दूसरे के फायदे के लिए करना। अब यज्ञ यही होता है ना, आपका दूसरों को यज्ञ यानी अब जब बुलाते हो तो सब लोगों को बुलाते हो, उनको प्रसाद खिलाते हो, उनकी सेवा करते हो, उनको दान दक्षिणा देते हो, तो आप एक हिसाब से डिटैच होते जाते हो, निर्मोही बनते जाते हो। हाँ? तो ये 3 कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन खैर एनीवे, कहने की बात यही थी कि मैं फिर वहां पे चले जाते हैं। आपको अभी वो दिखाई दे रहा है जहाँ पे हम लिख रहे थे ना, वही दिखाई दे रहा है। दिख रहा। हाँ, तो अभी हम इसमें लिख देते हैं कि Pure devotee is free from attachment. Pardon, sorry. A pure devotee is free from attachment from Pure devotee material things. Is free from attachment from material things and sense gratification. Sense gratification. And लेकिन वो पॉइंट तो लिखनी है ना पहले, जो ये डिस्कस कर रहे थे अशोक जी और रमेश। detachment from mind. ये सेकंड पॉइंट है। Okay. क्या बताइए, डिटैचमेंट? Detachment from mind, not Yeah. from the things or the duties. We have to do our duties, but in Nishkam Bhav. And no hatred for. No hatred. No hatred for anyone. He's friend of every living being, whether human or an animal. He's well-wisher of everyone. Okay. Huh? Yeah. So we'll just write a point which Ashok Bhai was saying, that don't give up your duties, but have no attachment to the results. So it's basically second point is the similar, no? That Nishkam Karma. Okay, you wrote in detachment from mind and not from the duty and mode of. Okay, yeah, that's right. Okay, yeah. Okay, then we take it out. Yeah, it's okay. It's okay. Okay. Anything else? Good. So we will. Vairag, he was saying about the Vairag, the detachment, about this thing, Rag and Dvesh. Yeah. Nishkam will be considered as Vairag, is you're working without any expectation of result. So you have no attachment. Okay, so we will go now to groups 3C. So who was in group C? Hare Krishna.
Haribol? Haribol? Anybody? Yeah. No, sorry, we were in group, the 5th group. Sorry. Okay, but I think then C was not there. Then maybe then because it got dissolved. Yeah, because we transferred the people from C to other rooms. So then it will be Okay. group D. Group D, I think was Prema Manjari. Yeah. Hare Krishna, Prema Manjari. Prema Manjari, please speak up. Haribol. Haribol, there was one group of ours, just to Raju and us. Maybe Okay, Raju can. then you only Yes. say. You only Yeah, say. but Yeah, for the yeah. Even I all think see- we were there, no? I think we were there, Mataji. yeah. So you Right? can say what we discussed about the false ego. Okay. So false ego ka, Mataji, I am giving 2 points and then 2 points you can give. Okay. 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 So basically, I just told that false ego, it leads to, like, passion and ignorance. Lead So to- if you quit, Yes. so if you quit false ego, so you will be elevated and automatically we will achieve goodness. So they're all interconnected, I feel, Yeah. Okay. Quitting false ego will lead to. Yeah, will elevate us and help us in achieving goodness. Elevators. Yeah. And help. reach- And rest, Mataji can give. She had discussed some beautiful points she had given. Yeah. Say, Mama Gauri. False ego is leads to detachment. Actually, false ego is like once you realize that you're not this body and nothing belongs to you, whatever you have, property, money, whatever you have, this body has been given to you by the Lord as a like you're like a tenant in this body. So you're supposed to take care of this body and not destroy it and all. So when you realize that you're soul and this nothing belongs to you, so there'll be no false ego and there'll be no attachment. Okay. Okay. More or less, I've written false ego leads to detachment. Nothing belongs to you. You are like a tenant in this body. Right? Yeah. Yeah. What else? Anything else? And another thing is that because you're the tenant, you're not the Yeah. proprietor of this body. So we have no right to destroy and misuse this body. Right to destroy or misuse this body. Okay. So that is why, so when people, there are some people who, when they commit suicide, they have to live in the ghostly body. The Krishna doesn't give them another body so easily, so soon. Like a suicide. Okay, more or less, this is the point, huh? Okay? Yeah. Okay. So we have one more last group, which is group E. Last group, please. Can you connect? Prema Manjari, I don't know the names. I think it was Prema Manjari. One of the groups. Prema Manjari, myself, Shilpa. Shilpa cannot talk right now, and Chanda. Okay, then Meena, you can start maybe. Who had made the notes, you or it was Prema Manjari? Honestly, I didn't make any notes, to be very honest with you. I should have actually put it down on the notepad. Sorry about that. But yeah, we did talk about goodness, how, sorry, 1 minute, the TV's on, yeah. There's a concept of peace, no? I think your Yeah. topic must be. No, we talked on the mode of goodness, you said, because Yeah. Then there nobody were was- only 4. Yeah. Yeah, so in the mode of goodness, we spoke that how you can, you know, how goodness can be good and bad, both for you. So if you use it in the right way, you'll just get more benefits. Like if you use it for devotion of Krishna, do devotional service, do all that, you know, it'll be beneficial for you. But if some people, like Prema Manjari said, are born in the mode of goodness, but they then do not know how to take it forward, so they may just, you know, get entangled in Maya and do it for their own self gratification, you know.
Okay. So the basic point would be, so if you're in the mode of goodness, to use that mode of goodness in the service of God, in the service of Krishna. Am I not clear? Sorry. Yeah. Reva Manjari, do you want to add anything else? I think they must have, for time being, they are disconnected, I suppose, because. Oh, okay. Yeah. Okay. Okay. So fine, we got wonderful points, quite a number of points. Like we can see, I mean, from 4, 3, 7, 7, 3, 10, and 3, 13. 13 points we have collected on these three concepts that we are talking about: detachment, goodness, and hatred. And anyone on the false ego? Yeah, the other concept was false ego. So do you all agree to all these points? Is there anyone who would like to comment on any of these points, which is something like prominent and something like very proper, which we should all be like paying more attention on it? Huh? Ramesh, you like Prabhuji, then One or 2 points. which points you're saying, Ramesh? कि वैराग्य जो है, first of all, it's a Hindi word, it's a Ragya. We can't hear you. You have to go closer to the microphone. Vairagya. Go closer to the microphone, Ramesh. Microphone. See, Vairagya is opposite of Ragya. Uh-huh. Is the voice coming? Very slow, very low. Okay, so वैराग्य जो है वो मन से कनेक्टेड है. हाँ. वैराग्य मन से कैसे करे, ही सेइंग, प्रभु जी. हाँ, मन से कैसे करें. हाँ. ओके. कनेक्टेड है. राजू भाई ये बोला मुझे कि वो मन कनेक्टेड है वैराग्य, तो इसके लिए वैराग्य क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. हर वैराग्य, क्योंकि देखो हमें ज्ञान योग जाना है, चैंटिंग करना है और कल्पते होने का है, तो वैराग्य मन से जो कनेक्टेड है कि ऑल दैट इज अ वेरी पावरफुल, बट वैराग्य बहुत छुपा सब्सटेंस है, वो हमारे में घुस जाता है. राइट. तो इसके लिए हमें बहुत सावधान होनी पड़ती है. राइट. सावधानी. राइट. देखो वैराग्य हमें एंटेंगल कर देगा. जो अगर जो अटैचमेंट होती है ना, वो फंसा देगा. तो वैराग्य रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वैराग्य नहीं रखते हैं तो हम इस दुनिया में फंसे ही रहेंगे, एंटेंगल रहेंगे. तो अभी कैसे करना है कि हमें हमारे हाथों में सब कुछ है भी, लेकिन उनसे वैराग्य कैसा लेना है. आसान तरीका है कि वो सब जो हमारे हाथों में है वो भगवान के सेवा में उपयोग कीजिए. ऐसे समझो कि आपको बड़ी गाड़ी है, अच्छी सी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी ऐसा रखना खराब नहीं है, लेकिन वो गाड़ी का उपयोग क्या करते हो जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर वो गाड़ी में आप मंदिर वगैरह में जाते हो, संत महात्माओं को लेकर घूमते हो, उनको यहाँ वहाँ घुमाते हो और अच्छे कामों में लगाते हो, तो गाड़ी फिर आप खुद भी उपयोग करो और भगवान के उपयोग में ही लाओ. अभी घर है, वो घर को आप छोटा सा मंदिर बना दो, जहाँ पे आपके मेन सेंटर ऑफ द हाउस आपका भगवान ही है. तो इस तरह से आप घर को भी एक मंदिर बना रहे हो, तो एक तरह से वैराग्य हो रहा है आपका घर है, आप उसका उपयोग कर रहे हो. इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य. युक्त वैराग्य यानी जो भी आपके हाथ में है उसको युक्त भी हो आप उससे, लेकिन आप उसका लाभ भी ले रहे हो. वो भगवान के कार्य में लगा ही रहे हो, लेकिन उसका लाभ भी ले रहे हो. जैसे अभी कोई बड़े मालिक का कोई ड्राइवर होता है, एक ऊंची सी गाड़ी समझो रोल्स रॉयस चलाता है तो ड्राइवर, लेकिन गाड़ी चला रहा है, लेकिन गाड़ी का लुत्फ तो आनंद भी तो ड्राइवर भी तो ले रहा है ना. हाँ, सेठ तो पीछे बैठा है, ठीक है, लेकिन चला रहा तो है. तो इस तरह से तो हमें ऐसे सोच, लेकिन ड्राइवर को कभी ऐसे सोचना चाहिए कि क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ये गाड़ी मेरी हो गई, क्योंकि मैं चला रहा हूँ. कभी गाड़ी तुम्हारी नहीं है, ये हमारे मन में नहीं आने चाहिए कि गाड़ी हमारी है. तो इस तरह से हम जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी विषय प्राप्त करते हैं,
वो भगवान के उपयोग में लगाएंगे, भगवान के सेवा में लगाएंगे, तो एक युक्त वैराग हो जाएगा। ठीक है? So Haribol, so in this case, I don't know if it's out of context. So the Zoom call that we use, so are the Chinese in one way Yukta Vairagyas because they have introduced this app, and because of them we are actually getting a lot of spiritual benefit? No, they are not युक्त वैराग्य, हम युक्त वैराग्य। देखो अभी जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट में जैसे ये Zoom भी तो एक one of the concepts of internet ही है। अब what use are you bringing into? अभी देखो ये Zoom बिजनेसमैन में लगाते होंगे, आपस में कोई yes of course various बुरे काम में लगाते होंगे, कोई ऐसे बुरा काम चलता होगा दुनिया में ऐसा कोई उसमें लगा, लेकिन हमने वही ज्ञान को लेकर अपने अच्छे फायदों के लिए लगाया है, यानी भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दिस इज युक्त वैराग्य कि हम इससे दूसरा भी लाभ ले सकते थे। हाँ, इंटरनेट से दूसरा भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम अपना समय उसका उपयोग कर रहे हैं फॉर प्रॉपर यूज। करेक्ट। ओके, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैराग का मतलब ये हो सकता है ना कि मन से किसी चीज का त्याग करना ही वैराग हो, या शरीर से त्याग करना वैराग है? नहीं, मन से ठीक है, मन से करोगे यानी आप उसमें अटैच नहीं होते हो। मन के करना यानी आप अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, यानी आपसे अगर छीना गया तो आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो है तो अपने मन की बात है, फिजिकल की बात तो है ही नहीं ना। ऐसा थोड़ी आप छोड़ दे रहे हो उसको, जो आपके मैंने बता रहा ना, आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, तो रखो अपने मन, लेकिन मन से उसका वैराग होना चाहिए, क्योंकि ये भी सोच के कि ये हमारा नहीं है, हमें दिया गया है। जैसे हमने वो ड्राइवर की बात की, जैसे गाड़ी की, तो जैसे कैशियर होता है, जैसे समझो कि बैंक में कोई कैशियर काम करता है, वो एक दिन में न जाने करोड़ों रुपए गिनता है, लेकिन वो करोड़ों रुपए उनके थोड़ी है। अगर वो समझ ले कि मैं गिन रहा हूँ तो मेरे करोड़ रुपए को मैं तो ले जाता हूँ घर पे, तो चोर हो गया। तो इस तरह से हमें जो भी वस्तु मिलती है और हम अपने उपयोग में लगाते हैं, अपने आनंद में, अपने फायदे के लिए लेते हैं, और भगवान को उसका भोग नहीं चढ़ाते हैं या उसका सेवा नहीं लगाते हैं, तो एक प्रकार से आप उसको स्तेना बोलते हैं। स्तेना संस्कृत में यानी चोर, यानी हमें दिया गया है लेकिन हम उसका उपयोग भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं। तो वैराग तो है तो मन की ही बात है, क्योंकि हाँ, फिजिकल तो होता ही नहीं ना। फिजिकल कैसे करेंगे? फिजिकल ऐसे थोड़ी आप गाड़ी आएगी या पैसे आए बोले नहीं हम डांस करते हैं, हम छोड़ देते हैं, जिसको चाहिए ले लो, मैं रास्ते में फेंक देता हूँ जिसको चाहिए, वो तो है ही नहीं। वो तो फिर थोड़ी नादानी हो जाएगी। वैराग्य जो है मन का विषय है, मन का है विषय। निष्काम भाव से, that's why I added the निष्काम mode of निष्काम भाव. That's why I added this word. Prabhuji, I have a question. हाँ, wait just a minute, just 1 second, I'll stop this thing so that we can see each other. ये पेपर मैं बाद में आपको भेज दूंगा, so I'll just stop the sharing and we will continue with the. Okay, now you can speak. I want to know that suppose I am in the mode of Tyag and Vairagya and I'm ready to be spiritual and just maybe come to Vrindavan, for example, leave everything. But what about my children who are not in that mode as yet? How do I relate with them? Like we will become strangers. They are on a different path. How will I connect? I don't want to give up that part of it. I mean, won't it be difficult and very confusing? Yeah, that's very good. I mean, your question or your doubt is very genuine. You know, is for applicable to everybody. You are not the only one in this, let's say, concept. Everyone is going through the same concept. सबके साथ यही हो रहा है. लेकिन ये जो ज्ञान में जो बताया गया है, एक नेक्टर ऑफ डिवोशन करके है, वो एक आचार्य, उसमें रूप गोस्वामी हमें समझाते हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ युक्त वैराग्य। हमें अपना फर्ज, ड्यूटी, जैसे जब तक हम देखो एक बार हमने गृहस्थी, यू टेकिंग अ मैरिड लाइफ, यू हैव एक्सेप्टेड अ हस्बैंड, यू आर हैविंग अ गृहस्थ लाइफ, सो यू हैव चिल्ड्रन, यू हैव बिजनेसेस टू अटेंड, वो सब करने हैं। ऐसे नहीं उसको त्याग करके जा सकेंगे, जाके सब जाके वृंदावन में नहीं रह सकते हैं। अभी किसके किसके नसीब में होगा, उसके जिंदगी में ऐसा यानी एक हालत ऐसी प्रोड्यूस हो गई होगी कि वो जा रहा है वृंदावन में, जा पा रहा है, लेकिन हर कोई इंसान नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अपने घर को वृंदावन नहीं बना सकते हो। अपने घर को, अपने मन को तो अगर घर को भी नहीं बना सकते हो क्योंकि हालत परमिट नहीं कर रही है, तो मन को तो बना सकते हो ना वृंदावन। ये सब आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर है, बिकॉज व्हेन वी से कृष्णा कॉन्शियसनेस, द कॉन्सेप्ट इज द कॉन्शियसनेस शुड बी इन कृष्णा, not your physical being, person, presence in Krishna land. You could be in Vrindavan, but at the same time you are not in Vrindavan. Your mind could be somebody else. तो वो मतलब ही नहीं हुआ कि आप वृंदावन में रह के फिर अपने
पिछले कार्यों के बारे में, व्यापार के बारे में, घरों के बारे में, बच्चों के बारे में ध्यान करते हो, तो फिर वो वृंदावन में रहना यानी व्यर्थ रहा. तो द पॉइंट इज wherever you are, make that into Vrindavan, you know. So it's a question of your consciousness. And don't feel guilty also कि दूसरे जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, या मुझे जाना है, मैं नहीं जा पा रही हूँ. नहीं, वो भी नहीं है. You could be a perfect devotee or a better devotee being where you are, as long as your consciousness is pure and you're connected to Krishna. You know, you're connected to God and your consciousness is pure. Yes, Does it answer your doubt, or you still have? yes. No, I'm feeling better. Okay. Yeah. Okay. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हाँ, ये जो राजू प्रभु, आनंद प्रभु, राजू प्रभु कह रहे थे, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ जो फिजिकल और मेंटल लेवल पर. तो प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर हम किसी चीज का त्याग करते हैं, वैराग करते हैं, लेकिन अगर हमारा माइंड उस पर ड्वेल करता है, जैसे हम शराब नहीं पीना चाहते लेकिन हमारा माइंड यही सोचता है कि मैं शराब पीऊं, तो उसे मरकट वैराग या फाल्गु वैराग कहा जाता है. मीन्स फिजिकली हम नहीं करते लेकिन हमारा माइंड उसके ऊपर ड्वेल करता है, उस माइंड से आसक्ति है, तो वो बेकार चीज है. उल्टा कि कोई मंदिर नहीं जाता है, घर बैठा है लेकिन मंदिर के बारे में सोच रहा है, तो वो चीज ज्यादा अच्छा कि मंदिर में बैठकर बाहर के बारे में सोचो, फिर उससे अच्छा मंदिर मत जाओ. तो हमेशा जो आपने बताया ये बात अच्छी है कि ये माइंड के लेवल पे ही होना चाहिए, कॉन्शियसनेस के लेवल पे होना चाहिए. राइट, वेरी गुड. या दैट्स द पॉइंट. तो मैं प्रभु जी just one question. Prema Manjari Mataji said this point that some people are born with goodness. So you can you just highlight with that? Yeah, just a minute. I'll come back to this topic. I'll just clarify this point which my Ananda Vardhana I just spoke about. And I will share this what in Bhagavad Gita. अशोक प्रभु जी देखो ये भगवद गीता में क्या समझाते हैं. सी जो भगवद गीता चैप्टर 3 वर्स 6 देख रहे हैं ना आप स्क्रीन में सब? Yes. Yes. One who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. Okay? कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनस स्मरण इंद्रियार्थम विमुदात्मा मिथ्याचार स उच्यते. मिथ्याचार यानी मिथ्याचार है, यानी आप बाहर से तो दिखाते हो कि मैं भक्त हूं, लेकिन अंदर में आपके विचार सब इंद्रियों में लगा हुआ है. तो वो फिर मिथ्याचार हो जाता है, वो प्रिटेंडर हो जाता है. तो मन की शुद्धि आने चाहिए, प्योरनेस ऑफ द माइंड होनी चाहिए. जो जैसे अभी कमल का फूल होता है ना, जैसे वो गंदगी में रहता है लेकिन उभरता देखो कितना सुंदर सा लगता है. क्यों है गंदगी में, लेकिन गंदगी से परे है, गंदगी से थोड़ा ऊपर है. तो गंदगी से उनका यानी क्या बोलते हैं, रिश्ता नहीं होता है. यानी भले उनकी रूट्स की जो रूट्स अगर गंदगी में है लेकिन खुद ब खुद गंदगी का अलग होता है. तो इस तरह से हमें होने चाहिए. हम ठीक है संसार में आ गए, फंस गए हैं, और हमारे आजू बाजू कलयुग के वजह से इतना प्रभाव, गलत का प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है. लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उनके जैसे चलें, बोले सब तो कर रहे हैं तो मैंने नहीं किया तो क्या, मैंने भी किया तो क्या बड़ी बात हो गई, चलो मैं भी करता हूँ. नहीं, हमें साथ में कलयुग तो है ही है, लेकिन हमारे साथ साथ भगवान ने ये शास्त्र वगैरह ज्ञान, जो हमारे गुरु हैं, जो संत महात्मा हैं, वो भी हैं साथ साथ में, वो भी हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं. तो वी हैव टू स्टिक टू देम. थोड़ा उनसे ज्ञान प्राप्त करना है. और क्योंकि अगर इच्छुक नहीं रहेंगे, अगर उनके करीब जाने की इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं जा पाएंगे. तो वी हैव टू क्रिएट अ डिजायर. Yeah, sorry, I think Yogita, you were asking something before. Hare Krishna. Yeah, she was talking about goodness. Yeah. No, Sorry, Yogita, carry on. The Nishkam. I did the word Nishkam. I was saying that. No, it was me who was talking about goodness. Yeah. I was talking about the Nishkam. Who detachment from Yogita. Yeah, no, but somebody asked something about goodness, that you're born in the middle of goodness. No, I didn't. Prabhuji, I am Jyoti here, Raju's wife. Okay. So I'm also listening to the lecture, na? So I was just wanting to know, Prema Manjari Mataji said some people are born with goodness. Yeah, that's true. Okay. So, and some people gain goodness. Yes. तो इसका जरा बताएंगे आप? Yeah, I will explain a little. जो भगवद गीता में जैसे बताते हैं
प्राप्त पुण्य कृताम लोकम उषित पर शाश्वती समा सुजीनाम श्रीमदा गेह योगो नष्ट प्रायते। अभी ये क्या होता है, ये भक्ति का भाव ऐसा होता है कि आप जो करते हो जिंदगी में, जो भी भक्ति या अच्छे कार्य करते हो ना, तो उसका फल आपको अगले जिंदगी में मिलना ही है। तो आप वहां से, यानी ये जो अच्छे काम होते हैं ना, इट विल लीड यू टू बी बॉर्न इन अ प्रॉपर फैमिली। अभी जैसे कोई देखो बचपन से ही कोई भक्त के घर में पैदा हो जाता है, या कोई ब्राह्मणों के घर में पैदा हो जाता है, कोई ऐसे अच्छे घर मिल जाते हैं, क्योंकि उसके इसका मतलब ये है कि पिछले कर्मों की वजह से आज उनको ये अच्छी प्राप्ति हुई है, अच्छे जन्म की प्राप्ति हुई है। हाँ, तो कोई का इसका, तो अभी ये लाभ हमें मिल गया, अभी हमारे ऊपर है इस लाभ का क्या उपयोग, कैसे उसका उपयोग लेना, कैसे उसका उपयोग बढ़ाना। क्योंकि हमें फैसिलिटी तो दी जा रही है, मैंने समझो कि आपको किसने बिजनेस सेटअप कर दिया, ऑफिस वगैरह दुकान वगैरह लगवा के दिए, लोग कर्मचारी भी दे दिए, अभी आपके ऊपर है आप बिजनेस को कैसे बढ़ाते हो या गवाते हो, ये आपके हाथ में है, राइट। तो ये इस तरह से आपको जो मोड ऑफ गुडनेस है या मोड ऑफ इवन वैष्णविज्म है, जो हमारे विशुद्ध भक्ति का जो भाव है, वो भी हमें पिछले कर्मों, कोई देखो तो इतने बड़े बड़े फैमिली में, और कोई देखो तो जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो कंस के घर में, यानी जब हिरण्यकशिपु के घर में पैदा हुए, तो कंस वो तो एक डीमन था, असुर था, लेकिन असुर होने के बाद भी देखो वो भक्त बने। हाँ, वो पिछले कर्मों से उसकी भक्ति आई, उसके अंदर आई हुई थी, उसको भक्ति खींच के ले आई ना। और फिर अभी दूसरी बात होती है जो डेवलप करते हैं, वो दूसरी डेवलपमेंट में क्या होता है, ये देखो हमारे भगवान ने इतने दयालु, इतने मर्सीफुल हैं कि साथ साथ में कलयुग के बावजूद भी अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, इसके जो दूत हैं, कहने का मतलब जैसे कि संत महात्मा ऋषि जो होते हैं, वो उनके दूत होते हैं, उनको बेचते रहते हैं बीच बीच में, ताकि वो जाके हमें यहाँ समुद्र में, ये डूबते हुए समुद्र में से बचाएं। तो कोई उसके नजरों में आ जाते हैं और उनके ऊपर वो दया डाल देते हैं, तो वो इंसान बच जाता है हाँ, डूबने से। वैसे तो सब हम संसार के दरिया में डूब ही रहे हैं, लेकिन हमारे आज हमारी बात देख लो, हम जो पर्टिकुलरली देखो बहुत हमारे में होंगे, जैसे हम तो वेस्ट में आ गए देखो इतने 25-40 वर्षों से, तो यहाँ अगर हमारे प्रभुपाद की मूवमेंट है, जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस, जो भक्त हमारे यहाँ पास नहीं आते या ऐसे प्रचार नहीं होता, तो हम थोड़ी ऐसे आप और हम अभी सामने सामने बैठ के या ऐसे इस बातों के बारे में बोल सकते थे ना। We wouldn't be discussing these topics, these transcendental topics of Krishna. We would be anywhere else, you know, in the bars, restaurants, and the beaches, instead of sitting here and discussing about Krishna consciousness. No? So this has come because of this presence of these great souls, which Krishna has made available to us. He has given us this facility. ये हमें facility दी गई है, no? क्योंकि ये अगर नहीं होता तो संसार में बचता ही क्या, बाकी तो फिर सब यानी एक तरह से सब काला ही काला होता ना। तो so this is how you get the goodness, or through some person, or you already come from your previous life. So basically, if we are come into this path through the mercy of Krishna, we have to take the best advantage. Exactly. Very good. That's it. We have to take, मिला है तो उसका बड़ा अच्छा उपयोग करो। वरना देखो जैसे अभी this example is very crude, but थोड़ा applicable हो जाती है। ये example क्या है, जैसे अभी कोई जो सुअर होते हैं ना, उसको तुम हीरे सोने के प्लेट में खिलाओ खाना, और गंदगी, तो गंदगी खा लेगा, प्लेट छोड़ देगा सोने की, राइट। तो गंदगी खा लेगा। तो हम जैसे अभी कौवे होते हैं, तो कौवे कहाँ होते हैं, गंदगी में जाते हैं ना, जो क्रोड्स होते हैं। लेकिन हंस होता है, वो कहाँ जाता है, वो हंस को देखोगे परमहंस, इसलिए उसको जो महात्मा का नाम ही क्या होता है, परमहंस। परमहंस, जो हंसों से भी परे हो, उत्तम हो, वो परमहंस, वो महात्मा हो जाते हैं। तो इस तरह से हम हंस के जैसे होने चाहिए, हम कौवे के जैसे नहीं होने चाहिए, सूरों के जैसे नहीं होने चाहिए। हमें ठीक है, इस पैदाशी ऐसी मिली हुई है, क्या कर सकते हैं, कलयुग में पैदा हुए हैं और हम आ ही गए हैं, फंसे हुए हैं, तो ठीक है। तो जो हमारे भाग में मिल जाता है, अच्छी बातें आ जाती है, तो उसका पूरा उपयोग करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो इफ यू लेट मी नाउ कंटिन्यू प्लीज। और कोई नहीं हो तो मैं, क्योंकि अभी थोड़े 1-2 पन्ने और भी थे खाली जो शेयर करने थे, तो उसके बाद देखते हैं, समय होगा तो फिर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। I just want to share now the last aspect, the last portion. So
तो क्या, तो हमने ये देखा तो स्टेज ऑफ ब्रह्मभूता क्या होता है, ही कम्स टू दिस पॉइंट वेयर ही इज इक्वली डिस्पोज टुवर्ड्स एवरी लिविंग एंटिटी। हाँ, उसके लिए शत्रु और मित्र कोई नहीं, सब मित्र ही है। हाँ, तो शत्रु होते ही नहीं है, और उस समय वो भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो अभी ये ब्रह्मभूत स्टेज डबल यानी सिचुएशन का है, दो लेवल के होते हैं। जो एक होते हैं ब्रह्मभूता, हाँ, जो इम्पर्सनलिस्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा, ब्रह्मभूता स्टेज यानी लिबरेटेड स्टेज हो ही गया, आप लिबरेट हो चुके हो। लिबरेटेड यानी आप जानते हो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आप इस संसार के नहीं हो, इस भौतिक संसार के नहीं हो। आपने अपनी पहचान जान ली है, राइट। तो ये एक तरह का स्टेज ऑफ लिबरेशन ही है। तो कोई कोई ऐसे होते हैं यही स्टेज में ही खुश हो जाते हैं, बोले बस मैंने ये जानकारी पा ली, अभी मैं आई विल बिकम वन विद गॉड। अभी भगवान के 3 अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। हाँ? एक होता है ब्रह्मन एस्पेक्ट, यानी जिसको बोलते हैं एफल्जेंस या रोशनी या जो भी कहो आप, यानी जिसको एनर्जी भगवान की जो होती है। एक होता है ये स्टेज होता है, दूसरा होता है परमात्मा एस्पेक्ट, और तीसरा होता है जो परमात्मा होता है हर दिल में, हर इंसानों के साथ बैठे वास करते रहते हैं, उसको परमात्मा बोलते हैं, और तीसरा होता है भगवान एस्पेक्ट। अच्छा, अभी आप देखो कोई ऐसा इंसान है या ऐसा जीव है जो कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी की सेवा न करता हो। अगर दूसरे की सेवा नहीं करता तो खुद की तो सेवा जरूर करता है। पेट पूजा करना, शरीर की सेवा करना, वो तो करता ही रहता है, राइट। तो सेवा करना हमारा एक धर्म हो जाए। तो अगर कोई भगवान की तरफ जाएगा ही नहीं तो सेवा करेगा किसकी? हमारी इनबॉर्न क्वालिटी है। हमारी इनबॉर्न क्वालिटी यानी है किसकी न किसकी तो सेवा करनी है, या पत्नी सेवा करना है, बच्चों की सेवा करना है, शरीर की सेवा करना है, समाज की सेवा करनी है, दुनिया जो भी है किसकी न किसकी तो सेवा करनी है। हाँ, तो हम क्यों ना उसकी सेवा करें जो ये सब रच रहे हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसकी क्यों ना सेवा करें। हाँ, तो भक्त का भाव क्या होता है कि उसकी सेवा करना चाहता है। तो जेके इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, निराकार जो होते हैं, जो भगवान को समझते नहीं कि इसकी आकार है, वो समझते हैं भगवान निराकारी है, तो वो निराकार में ही लीन हो जाना चाहते हैं। एक तरह से है, ठीक है। देखो जैसे लोहा होता है, जैसे उसको अग्नि में डाला जाए तो एक समय आ जाता है कि लोहे में और अग्नि में अंतर नहीं होता, दोनों जला सकते हैं। तो उस गरम गरम लोहे से भी जल जाता है तो अग्नि से भी जल जाता है कोई भी चीज। हाँ, तो एक तरह से हम जब ऐसे प्रकार के भक्त बन जाते हैं, लिबरेटेड मुक्ति आ जाती है, तो हम एक प्रकार के भगवान के जैसे ही हो जाते हैं। लेकिन हमेशा भगवान में और इंसानों में फर्क होता है कि हम और यानी अंश में एक होता है अंश, उसका जो एक हिस्सा है, भाग है, जैसे उसको जैसे अग्नि होते हैं, और अग्नि के जो क्या बोलते हैं उसको, स्पार्क्स बोलते हैं, स्पार्क्स ऑफ द फायर, जो छोटी छोटी स्पार्क्स निकलती है अग्नि से। तो है तो दोनों अग्नि है, लेकिन स्पार्क छोटी होती है और अग्नि बड़ी होती है। तो हम ऐसे स्पार्क्स के जैसे हैं, जैसे छिन्ने निकले हुए हैं अग्नि से, लेकिन हम पूरी अग्नि नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन है कि हम अलग अलग आइडेंटिटी है और हम एक नहीं बन सकते हैं। तो ये ब्रह्मभूत स्टेज फॉर impersonalist may be an end, but for a devotee the brahmabhuta stage is the beginning of his devotional life. हमने एक बार ये जानकारी पा ली कि हम आत्मा है, हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो हम जान पाएंगे कि हमारा रिश्ता परमात्मा से क्या है और हमारा कार्य क्या है, हमारी रिलेशन क्या है, कि हम भगवान से हमारी रिलेशन कौन सी है। तो एक बार जान लें कि हमारे रिलेशन इज मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन। हम मास्टर कभी नहीं बन सकते हैं, जहाँ पे है वहीं पे रहे तो ठीक रहेगा। जैसे हमारी बॉडी होता है, हर बॉडी के अंश होते हैं, तो हर अंश का अपना काम होता है। हर अंश सर नहीं बढ़ सकता, सर एक होता है, दो भुजाएं होती है, पैर होते हैं, पेट होता है। तो हम सर एक शरीर से जुड़े हुए हैं, तो उसका मतलब है अगर हमारे शरीर में से कोई अंग निकल जाता है, जैसे कि समझो कोई उंगली टूट जाती है, हाथ टूट जाता है और अलग हो जाता है उस शरीर से, तो फिर उस हाथ का या उस उंगली का कोई मतलब नहीं रहता, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। हाँ, मूल्य जब तक है जब तक ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। तो हम भी जब तक भगवान से जुड़े रहेंगे
तब तक हमारा मूल्य है। एक बार हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो हमारा मूल्य चले जाता है। हाँ? तो लेकिन हम भगवान की भक्ति में रहेंगे तो भगवान जैसे कंप्लीट हैं। हाँ? भगवान में इस सच्चिद आनंद विग्रह, ही इज इटर्नल, ही इज फुल ऑफ नॉलेज एंड ही इज फुल ऑफ ब्लिस। उसमें सत्य है, चित्त है और आनंद है और भरपूर है, पूरे गिनती में है। तो हम अगर भगवान से जुड़े रहेंगे तो ये इनकी छिटके हमारे पास भी आएंगे, इनका जो थोड़ा शेयर है हमारे पास भी आएगा, हमें भी पूरा आनंद आ जाएगा, हमें भी चित्त आ जाएगा, हमें भी सत, हम भी सत बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि भगवान से जुड़े, जैसे अग्नि से लोहा जुड़ता है तो उस तरह से हम भी अगर जुड़ जाते हैं तो हमें ये सब प्राप्त हो जाता है। तो मतलब ही नहीं है कि अपने आप को परमात्मा या भगवान समझना, जो है वो है, उसी में खुश रहें और हमें उसमें ज्यादा आनंद मिलेगा। अगर जैसे आपको बताया कि पैर या अगर कट भी जाता है तो पैर का ही नुकसान होता है, हाँ, शरीर का नुकसान नहीं होगा, शरीर तो चलते जाएगा। हाँ, तो बस मैं यहीं पे आज समाप्त करूंगा। और आपको अगर कोई ऐसा सवाल वगैरह छोटा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप चैट में लिख दीजिएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, इट्स ऑलरेडी 4:30, तो 2 घंटे हो चुके हैं एंड आई एम सॉरी, थोड़ा एक्सेस हो गया टाइम। तो इफ final, if you have some comments to make or something, it'll be fine. Varna, we close up the program for today. If anyone has some comments to give or some opinion to share. Thank you, Prabhuji. Yeah, thank you very much for enlightening us. No, thank you. Thank you very much for giving your precious time and enlightening us. And हमको आप ignorance से बाहर निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो थैंक यू आपको बोलूं कि आप भी अपने 2 घंटे निकाल के सुन रहे हो, नहीं तो आजकल श्रोता बहुत कम हो, बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम हो गए। देखो मंदिर में देखो, वैसे जाओगे तो बड़े बड़े मंदिर भी बने पड़े हैं लेकिन खाली पड़े हो रहते हैं, नहीं? अगर रेस्टोरेंट्स में, बार में जाते हैं तो देखो फुल लगे पड़े रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपने 2 घंटे निकाल के इस विषय के बारे में समय दिया हुआ है तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, एंड कृष्णा आल्सो विल बी वेरी हैप्पी, ही विल बी extremely happy that people are taking interest into these topics, no? Yes. Prabhu, Guru Maharaj will be very, very proud of you. He'll be proud of you also. Okay, anyway, so we will stop now and we will continue. जो मैं आपको थोड़ा ये टाइम भेजा था कुछ होमवर्क करने के लिए, शायद लास्ट दिन था, शायद कोई कर नहीं पाए, लेकिन इज इम्पोर्टेंट, मैं कोशिश करके पहले जल्दी भेज दूंगा। इट विल बी इम्पोर्टेंट ताकि यू विल बी कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वर्स, बिकॉज विल बी टॉकिंग ऑलवेज ऑन द नेक्स्ट वर्स, सो उससे कनेक्ट रहेगा और पिछले वर्सेस से भी जुड़ा रहेगा, तो ताकि आपकी थोड़ी, तो नेक्स्ट concept will be, we have today finished with this concept of the confidential knowledge. Okay, जो गुप्त ज्ञान है, तो गुप्त ज्ञान क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारी आत्मा के कुछ कुछ ऐसे नियम है, हमारे बिहेवियर जो है कि कैसे होने चाहिए, और वो बिहेवियर से अगर ये आत्मा में जिएंगे तो we will reach to the point of ब्रह्म भूता, we will reach to the point of liberation, that is even when you are in this material world, इंसान के रूप में रह पड़े हो, फिर भी समझो आप मुक्त हो। हाँ, ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर जिस तरह से हमने आज पढ़ा कि आप किससे द्वेष नहीं रखते हो, कुछ आपके अटैचमेंट्स नहीं है, मोड ऑफ गुडनेस में रहते हो, आप फ्री ऑफ फॉल्स ईगो वगैरह से रहते हो, देन यू विल बी पीसफुल। तो पॉइंट इज एक्चुअली पीसफुल। हम जो भी कर रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे देखोगे शांति पाने के लिए कर रहे हैं, कि मन में शांति, मन में जिंदगी। पैसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि जैसे हमारे मन में एंजाइटी ना हो, हाँ, कि ये कल क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये एंजाइटी हमें थोड़ा दुख पहुंचा रही है। हाँ, तो पैसे इसके लिए कर, तो एट द एंड ऑफ द डे देखोगे पीस ही चाहिए हमें। लेकिन अगर आपको पीस अलग तरीके से मिल जाता है, जब आप जान लेते हो कि आप आत्मा हो और ये इतनी जरूरतें हमारी नहीं है, कम खाना है, अलग से रहना है, लोगों से इतनी मिलना जुलना नहीं है, तो आप पीसफुल हो ही जाओगे। कोशिश करके देखो आपको जिंदगी में you try to employ it in your life, you will be successful. Many are doing it and they are very happy, and you will also surely gain this goal. Prabhuji, I have made the conclusion of today's topic. Yeah. So after knowing this truth, so Lord Krishna says that after knowing this truth of these steps, what we have today, sattva, attachment, hatred, and free from false ego, peacefulness, everything,
So certainly a devotee is elevated. The self-realized person is elevated and can enter to the kingdom of Krishna's abode, that is Golok Vrindavan. Yeah. So this pure devotee is, the self-realized person is elevated. It's certain when Right. Lord Krishna says. Yeah, that is the conclusion. Yes, Yogita. Now we have reached decimal Bhaktya Pascha. Mam Avijanti. Bhaktya Mam, yeah, but that still stage we have to come because we have come to the confidential knowledge. Yes, yes. गुप्त ज्ञान खाली प्राप्त किया अभी और अभी we still have to come to the more confidential knowledge and the most confidential knowledge. Okay? तो ये हमने आज खाली ये पहला हिस्सा कंप्लीट किया हुआ है. अभी नेक्स्ट स्टेज से हम लोग शुरू करेंगे अधिक गुप्त ज्ञान यानी मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. हाँ, तो ये ज्ञान ठीक था हमारे लिए. हम आत्मा पहचान, हमारी पहचान जानने के लिए हमने जो आज ज्ञान मिला है वो अपनी पहचान जानने के लिए है. जो हमारी पहचान क्या है, हम कौन है, अभी आगे चल के पढ़ेंगे तो ताकि अभी फिर then we will become eligible. Okay? Yes, yes. Because right now we can still be in the impersonal stage of Brahma Bhuta. Okay? We could be considering ourselves one with the Supreme and be happy there itself. We have still not reached to the point of man mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru. अब तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं. तो वहाँ जब पहुँचेंगे then we can become eligible to go to the spiritual world. समझे ना? Yes, but it's connected like Bhaktya Mama. Those who knows, who follow these steps only by knowing these and following these steps, what we did today. Yeah, so but like they are also elevated. Yeah, but like as I was saying, like I'll show you. We will just go back if you want. See, for a Brahma Bhuta stage, being one with the Absolute may be an end. It can be an end. Okay? Yeah. समझे कि बस यहीं तक मैं मेरा मकसद पहुंच गया. For an impersonalist ये इसका अंत है. Yes. लेकिन जो devotee है, for a devotee, Brahma Bhuta stage is the beginning of his devotional life. Yeah, right. So right now we have come to this beginning. Now we will have to continue further and देखना है कि भगवान तक जो जैसे बोलते हैं, जैसे साक्षात आपके साथ भगवान रोज विराजमान रहे, आपके साथ ही रहे, मन में रहे और आपके साथ ही रहे हमेशा. वैसे हैं, but we are not recognizing him right now. We just have to recognize him. Huh? Yeah. Okay. So for the next class, can you explain in briefly the Vishuddha Sattva? How to be always in Vishuddha Sattva? That in the third stage. For the next. The third stage, not second. The third stage when we come to, then we'll talk about the Vishuddha Sattva. Okay. Thank you, Prabhuji. Thank you very much, and have a wonderful time. And please remain always Krishna conscious. और थोड़ा बहुत अगर जो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं थोड़ा जप कीजिए. That is the road to reach to Vishuddha Sattva. जब आप विशुद्ध सत्व के बारे में बता रहे थे, पूछ रहे थे, तो one of the first steps is chanting the glories of Lord, chanting the holy name of Lord. So you take the Japamala and you start chanting. Whoever is not doing it, please start chanting at least one round a day. And those who are doing it, very good, continue chanting and keep up the spirit, keep up your enthusiasm. Okay? Thank you and Hare Krishna and see you next time. Hare Bol, Wish Hare you Krishna, happy Hare Krishna Janmashtami in advance also. Happy Janmashtami to all of you. Happy Janmashtami, Prabhu. Happy Janmashtami. Hare Krishna, Prabhu. Hare advance. Krishna. Hare Krishna. Yeah. Hare Bol. Gampati is on 22nd August. So should we get the Gampati? Hare Bol. तो आप तो कहीं तो वाणी अच्छा